Indian society. During the post-independence time, Indian society had to face many challenges, and it is due to different religion and different social economic conditions, caste system, communities, okay, and gender discrimination. These are the main hurdles in our society. Still, we are facing problems, that is like poverty, illiteracy, okay, and these are working as the hurdles in the progress of our country. Our government has taken many steps, and the leaders that formed our constitution also provide us many provisions. After that, there are many amendments in our constitution to give us social justice or the equality. Reservation is provided to the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes in legislature, in government jobs, in educational institutions, to uplift their place in the society. Okay, इज इट क्लियर कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जब हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे. और ये कौन सी प्रॉब्लम्स थी? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, poverty, illiteracy. These are the main problems that we had faced, and these are the hurdles also in the progress of the country. और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बहुत सारी प्रोविजंस प्रोवाइड की हमें कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, इन प्रॉब्लम्स को हटा सकें और अपनी कंट्री में प्रोग्रेस कर सकें. द मेन प्रोविजन इज रिजर्वेशन. रिजर्वेशन किसे दी गई है? जो शेड्यूल कास्ट, जिसे हम शूद्रास बोलते थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, उन सबको प्रोविजंस दी गई हैं रिजर्वेशन की कि उनके लिए जॉब्स में, लेजिस्लेचर इट मीन्स कि गवर्नमेंट बनाने में, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन, उनके सीट्स को रिजर्व किया गया है. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज मेजर्स today we are able to form equality in our society. Challenges to Indian democracy. Indian democracy has achieved multi-faceted socio-economic progress. But at the time of independence, India faced Herculean task. आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, बट अगर हम अपने एंशिएंट टाइम पर एक नज़र डालते हैं, हम ब्रिटिश टाइम में अपनी कंट्री को देखते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं. The extreme poverty, millions of refugees and empty coffers created a delicate situation for the newly formed independent country. One more thing, when we got independence, there were riots in our country. It means the main problem is religious. The conflicts between Hindu and Muslim. And our country also divided into two parts, पाकिस्तान एंड इंडिया. तो पाकिस्तान से बहुत से हिंदू और मुस्लिम भी इंडिया में आए थे रहने के लिए. दे वर कॉल्ड रिफ्यूजीज़. रिफ्यूजीज़ मीन्स जिन्होंने हमारे यहाँ पर आकर शरण ली. शरणार्थी बोलते हैं हिंदी में रिफ्यूजीज़ को. तो
बहुत सारे हिंदूज़ और मुस्लिम्स इंडिया में वापस आए यहाँ पर सेटल होने के लिए, एंड देयर वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम टू सेटल देम बिकॉज देयर मनी, देयर हाउसेज वर इन पाकिस्तान. So how to solve this problem? This is the big problem, and that is the situation that our government has to handle. At that time there was poverty everywhere, our industries were ruined, and our agriculture also exploited. So we have nothing in our hand. The Indian state was short of everything. हमारे पास हर चीज़ की कमी थी. फूड, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर और एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सब हमारे पास नहीं था. बट in today's life we have all the things. We have good schools, we have big industries, good infrastructure, skilled manpower. Okay, but at the time of independence हमारे पास ये सब नहीं था, इन सब की lacking थी. Okay, caste system and social evils were hampering the progress of our country, and there was wide gulf between the Hindus and Muslims. Okay, we have discussed it कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. गल्फ मीन्स एक खाई जिसको कह सकते हैं हम, बहुत गहरी खाई. देयर इज़ अ वाइड गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. सोशल इविल्स बहुत सी थी, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में था. तो इन सब चीज़ों को हटाकर, इन सब चीज़ों को थ्रो करके ही हम प्रोग्रेस कर सकते थे. And we did that. India has remarkable progress in each and every field. We have progressed in industries as well as agriculture. Our economically and socially we are developed now. Our industries, communication systems, science and other affairs were developed now. We have done the remarkable progress in these areas. Now our focus is on creating unified and developed nation. We have developed, but still some development is required in some areas. तो उन एरियाज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पॉवर्टी ख़त्म करने की ज़रूरत है, और हमारी कंट्री को हमें यूनिफाइड डेवलप्ड नेशन बनाना है. यानी कि एक जुड़ी हुई, जहाँ पर किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसी डेवलप्ड कंट्री हमें फॉर्म करनी है. We have solved so many problems, but poverty, health problems and illiteracy, these are the main problems that we are facing in today's life also, and these are the biggest threat to the peace and progress of the country. If a person is poor, he cannot work for the country. If he has not a healthy life or a healthy body, तो भी वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं कर सकता. तो हमारी डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में तभी इम्प्रूवमेंट होगी अगर यहाँ से पॉवर्टी और इलिटरेसी और पुअर हेल्थ ख़त्म होगी. ओके, our country has undergone many major political, cultural and economical changes since independence, but there are many avenues that still need improvement. We have a good or high-tech satellites or high technologies. We have modern industries. Okay, we have mineral stores, जो houses हैं हमारे पास, जो Deccan Plateau है, that is the store of minerals, तो store house of minerals. ठीक है, and we have big industries, skilled manpower, educated people we have.
but still the poverty and illiteracy in some areas and the poor health works as a hurdle in the progress of our country. So we have to work hard. हमें इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा. इफ एन इंडिविजुअल डेवलप्ड इटसेल्फ ओनली देन द कंट्री डेवलप्स. अगर हम खुद को डेवलप करने के लिए वर्क करेंगे तभी हम पूरी कंट्री की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज विजन 2020. एवरीबडी हैज़ सम ड्रीम्स अबाउट देयर लाइफ कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा या कुछ भी. हमारे पास बहुत सारी ड्रीम्स हैं जो हम सोचते हैं, और कुछ नहीं तो हम सोचते हैं कि हम रिच बनेंगे, बहुत अमीर, है ना. सो एवरीवन हैज़ सम ड्रीम्स फॉर देमसेल्व्स. अपने लिए तो हैं ही, बट वी वांट आवर कंट्री बेटर. उसके लिए भी हमारे पास ड्रीम्स हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, बहुत डेवलप्ड है, कोई पुअर ना हो, ठीक है. एंड एवरीबडी हैज़ द हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, सब एजुकेट हो सकें. दीज आर द मेन ड्रीम्स ऑफ आवर कंट्री. जो हमारे कंट्रीमैन हैं उनके मेन ड्रीम्स हैं ये. ओके, और इन ड्रीम्स को हम फुलफ़िल करना चाहते हैं. इन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने से ही हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सकती है. सो डॉक्टर अब्दुल कलाम ऑल्सो हैड द ड्रीम दैट आवर कंट्री बिकम द कंट्री ऑफ एनलाइटेंड एंड इग्निटेड माइंड्स. And these minds will transform India a competitive, beautiful nation. For this, what we need better quality of education, basic literacy to high tech science. जो बेसिक लिटरेसी है यानी कि पढ़ना लिखना आने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजीज़ भी हमें आनी चाहिए. उसमें भी हम एजुकेशन बेटर क्वालिटी की लें. रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर वर्क में डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सके. इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी ग्रोथ हो. ओके, एंड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी हम कंट्रोल कर सकें. एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो सॉल्व्ड with a wise mind. So if we overcome all these problems, only then our country become the developed country. यहाँ पर अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छी रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, स्किल्ड पर्सन्स, हाई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होने पर ही हमारी कंट्री डेवलप होगी. ओके, सो दिस इज द विजन ऑफ 2020. इट मीन्स द विजन ऑफ फ्यूचर. हम फ्यूचर में अपनी कंट्री को क्या देखना चाहते हैं. वी वांट आवर कंट्री अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री. ओके, so this is about the vision of 2020.